Hello students, myself Rakesh Misra and this is part 7 video of full revision of fundamental units of life. As you all know, our revision of first chapter is going on. In previous video lecture you have learned the revision of the short answer type question up to question number 10, and before short answer type question there was a revision of very short answer type question that was almost over, and that was the collection of almost 53 to 54 questions, and their series almost is over up to part 6 video lecture. So in this video you will learn the revision of short answer type question from question number 11 onward, because the question number up to 10 for short answer type question is over in the previous video, that is video number 6. So this is essential video. As you all know, the short answer, long answer and very short answer type question is compulsory to revise yourself, because this may occupy maximum numbers from the out of 80 that will be asked in the upcoming examination. So concept basis question like fill in the blanks, MCQs, assertion regions, true false type is almost over from this lesson. Only the long, short and very short answer type question is still pending, that was over in up to part 6 video lecture. So without delay timing, let back over the question number 11, that is short answer type question number 11, and revise them thoroughly. I hope you have pen paper in order to note down the question paper and their answer. The question number along with the answer is necessary in your copy. How can you get the question through the PDF you will get daily, and the answer through the video you will also get daily. So with the help of video you should write the answer. The probable answer that you want to write for the particular question should be mentioned in your copy. There is no need to make the separate copy for the question and answer. So I hope you are doing so. Without any hesitation, you can frequently ask me whatever your problems related to copy. Many of the students ask me whatever the copy made for the special kinds of theory or the for the revision. So you don't need to make the different copy. Every question, answer and the theoretical portion should be in the single copy, and I hope you are doing so. So without delay timing, let back over the question number 11 and revise them thoroughly. Now the series of short answer type question that may probably asked as the 2 marks. So you should focus each and every question that may related with the long answer type question. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये लास्ट वीडियो में ही क्लियर हो गया था. क्वेश्चन नंबर 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन था. रियो लीफ पील को क्या बोला गया था? रियो लीफ पील को पहले कोल्ड वाटर में, ठीक है, उसके बाद दूसरा लीफ जो है हॉट वाटर में, ठीक है, बारी बारी से पुट किया गया. ये दोनों अलग अलग कंडीशन है. दो अलग अलग लीफ लिया गया, कोल्ड और हॉट वाटर के बाद जो है लीफ को हाइपरटोनिक सोल्यूशन. देखो सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, इसको मैं पहले ही बताया था. एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक. ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है. सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से वो ज़्यादा होता है. सॉल्यूट मीन्स जैसे चीनी को पानी में घोला गया तो चीनी का कंसंट्रेशन पानी के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तो हाइपरटोनिक है. हाइपोटोनिक में उसका उल्टा होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से कम होता है. जैसे चीनी को पानी में घोला गया, पानी ज़्यादा हो चीनी कम हो. आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बराबर होता है. क्लियर है ना? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से बराबर होता है. तीनों में सेल के इफेक्ट अलग अलग होते हैं. हाइपरटोनिक में अगर सेल को प्लेस करोगे तो सेल जो है प्लाज्मोलिसिस शो करेगा, यानी सेल का श्रिंकिंग होगा. ठीक है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को प्लेस करोगे तो सेल में स्वेलिंग होगा, यानी सेल धीरे धीरे फूलना शुरू करेगा. ठीक है, और उसको कहते हैं टर्जिडिटी. उसको क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लेस कर रहे हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्लियर है ना? आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन. क्या बोल रहा है?
गिव टेक्निकल टर्म्स फॉर द मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन एज द सेल। कह रहा है कि कोई टेक्निकल टर्म्स अगर आपको मालूम है, ठीक है, कोई अगर टेक्निकल टर्म्स आपको मालूम है तो उस टेक्निकल टर्म्स को बताइए कि जिसमें सेल के कंपेयर में, ठीक है, मीडियम में भी सेम कंसंट्रेशन में क्या हो, कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट अवेलेबल हो। जैसे मान लो कि ये कोई मीडियम मैंने बना दिया सॉल्यूशन का और इसमें एक सेल को पुट कर दिया, ठीक है, सेल में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सेल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों 100 ml है, ठीक है, 100 ग्राम 100 ml हो, और बाहर जो मीडियम है उसमें भी सेम 100 हो, 100 सॉल्यूट हो और 100 जो है सॉल्वेंट हो। तो यहाँ पे कह रहा है इस टेक्निकल टर्म्स को क्या बोलते हैं, दैट टेक्निकल टर्म्स इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वाई डज द साइज ऑफ सेल रीमेन सेम व्हेन प्लेस्ड इन सच सॉल्यूशन। कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में अगर सेल को प्लेस किया गया तो सेल की साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों, बिकॉज द मैटर दैट इनसाइड द सेल कैन नॉट मूव आउटसाइड एंड द मैटर दैट अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द सेल कैन नॉट मूव इनसाइड। देखो सेल से मैटर कब आउटसाइड मूव करेगा, जब सेल में कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो बाहर मूव करना शुरू करेगी। और अंदर से बाहर कब मूव करेगा, जब बाहर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा तो अंदर मूव करेगा। यहाँ पे दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट इक्वल है तो सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे एज वी नो दैट देयर इज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अवेलेबल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सिस्टम, सो द देयर इज नो इफेक्ट ओवर द शेप ऑफ सेल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, CC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेंशन टू फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटस। कह रहा है गोल्गी ऑपरेटस का दो फंक्शन आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फंक्शन बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पूछेगा 3 बताएंगे, बस आपको लिखना है कॉपी में। पहला फंक्शन तो सबको पता है, ये लाइसोसोम की सिंथेसिस करता है। इसकी सिंथेसिस करता है लाइसोसोम, ठीक है। मैंने क्या बताया था, गोल्गी ऑपरेटस इस तरह से होता है, पीछे उसके लाइसोसोम्स निकलते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम की सिंथेसिस करता है। सेकेंड फंक्शन क्या है, ये लिख लेना, लाइसोसोम की सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, ये नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सेलुलोज, ये सब कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये सब की सिंथेसिस कौन करता है, ये सब की सिंथेसिस करता है गोल्गी ऑपरेटस। थर्ड फंक्शन भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस, इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर, लाइसोसोम सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स शुगर सिंथेसिस लाइक दिस एंड सिक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस। क्लियर है इतनी बातें, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल। कह रहा है कि कोई सबस्टेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल के अंदर या बाहर कैसे मूव करता है, सेम कंडीशन वाटर सेल के अंदर या बाहर कैसे मूव करता है। क्लियर है ना। कोई गैस अगर मूव कर रहा है सिंपली तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, ये इंपॉर्टेंट है। और वाटर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंट यही है, मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, that is plasma membrane, is known as osmosis. And diffusion is the movements of any gaseous substances from higher concentration to lower concentration, that is known as diffusion. So carbon dioxide moves by means of diffusion and water moves by means of osmosis. इतनी बातें क्लियर है? चलो आते हैं, क्वेश्चन है इन विच फॉर्म डज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका भी फंक्शन कभी कभी पूछ देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज द एनर्जी। क्लियर है ना? राइट इट्स फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म तो लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आगे दिया है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दीज फोल्ड्स। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये काफ़ी डीपली फोल्डेड होता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या पूछ रहा है, इसको बोलते क्या है, दैट इज नोन एज क्रिस्टी, दैट फोल्डेड पार्ट इज नोन एज क्रिस्टी, एंड दैट क्रिस्टी बियर्स वेरी स्पेशल काइंड्स ऑफ F1 and F0 particles where ATP synthesize, where ATP gets synthesized. So the inner membrane of mitochondria that deeply fold is called cristae, where the ATP gets synthesized and remain until its use. जब तक इसका यूज नहीं होगा तब तक ATP माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे अवेलेबल रहता है। तो क्रिस्टी जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो ATP की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, लेकिन आंसर लिखना जरूर है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ये मैं आपके लिए ढूंढ डांट के इधर उधर से लाया हूँ, और ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं साइड बुक या बाकी चीज़ें नहीं, ये एग्जाम में, मेन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आप एक दो बार इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आप चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए, वेयर आर क्रोमोजोम्स लोकेटेड इन सेल। तो क्रोमोजोम पूछ रहा है कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोजोम्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, क्रोमोजोम लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। व्हाट आर दे कंपोज्ड ऑफ, दे कंपोज द क्रोमैटिन थ्रेड, they compose the chromatin thread. What important information they contain? तो क्रोमैटिन थ्रेड्स को अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो बेसिकली क्रोमोजोम्स हैज द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक, ये सी है, ये क्या सी है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। लिसन, so basic ingredients of nucleus is the nucleic chromosomes is the nucleic acid and protein, that is that form the chromatin thread and chromatin threads form the chromosome. ठीक है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम किससे मिलके बना होता है, क्रोमैटिन थ्रेड से। ठीक है, कह रहा है व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे कंटेन, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिजाइन ऑफ लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग का या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी डिजाइन का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, क्रोमोजोम में होता है। ठीक है ना, लिख लेना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम लोग। प्रीथा, क्या दिया है भाई, प्रीथा, प्रीथा वॉज ऑब्जर्विंग लाइफ सेल ऑफ ओनियन इन बायोलॉजी लेबोरेटरी। प्रीथा नाम की एक कोई लड़की है, लड़की ही होगी, जो ओनियन सेल को किसमें, लेबोरेटरी में, बायोलॉजी के लैब में इसको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। शी ऑब्जर्व सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस क्लियरली। वो क्या क्या ऑब्जर्व की, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सडनली हर फ्रेंड हु वाज डूइंग केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट स्पिल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ साल्ट वाटर ऑन द स्लाइड। क्या हुआ, अचानक से उसकी फ्रेंड जो केमिस्ट्री पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो आई और थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप जो है उस सेल पे साल्ट वाटर ड्रॉप कर दी, यानी कि उस पर 2-4 ड्रॉप गिरा दी। आफ्टर सम टाइम प्रीथा ऑब्जर्व द स्लाइड
एंड फाउंड सम चेंज। कुछ समय के बाद प्रीथा, जैसे एक स्लाइड था, उस स्लाइड्स पे प्रीथा क्या देख रही है, उस स्लाइड्स पे प्रीथा देख रही है सेल। सपोज दैट ये मैं स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है, इस पे प्रीथा देख रही है सेल, लेकिन उसकी फ्रेंड क्या की, उस पे 2-4 ड्रॉप जो है क्या गिरा दी, HCl नहीं, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या गिरा दी, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन गिरा दी। अब क्या प्रीथा को क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द चेंज इन द लाइफ सेल्स ऑफ ओनियन पील आफ्टर एडिंग साल्ट वाटर। कह रहा है कि साल्ट वाटर को ऐड करने पे ओनियन सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये स्लाइड है, स्लाइड पे जब साल्ट वाटर आप ऐड करोगे ना तो पता है क्या होगा, ओनियन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में श्रिंकिंग आना शुरू हो जाएगा। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैला था, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंकिंग शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस of shrinking of plasma membrane is known as plasmolysis. Plasmolysis. So what is plasmolysis? Shrinking of protoplasm. That shrinking of protoplasm is known as plasmolysis. ठीक है, तो ये प्लाज्मोलिसिस कॉमनली कब होगा, जब कोई सॉल्यूशन जो सेल के साथ इंटरफियर कर रहा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेल उसके अंदर जो है श्रिंक करना शुरू कर देगा। सेल जो है अंदर जो रहेगा वो श्रिंक करना शुरू कर देगा, ऐसे श्रिंक करना शुरू कर देगा, यानी कि सेल सिकुड़ना शुरू कर देगा। सच श्रिंकिंग ऑफ सेल इज नोन एज श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल in hypertonic solution, called plasmolysis. ये बात आप दिमाग में रखिए, प्लाज्मोलिसिस में हमेशा सेल जो है श्रिंक करता है। ठीक है, और उसके लिए कंसंट्रेशन जो साल्ट का हम ऐड कर रहे हैं या वाटर का या सोल्यूशन का ऐड कर रहे हैं उसमें वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कैसा हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं हम लोग। हाउ कैन प्लांट सेल विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम दैट द एनिमल सेल। कह रहा है कि प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के कंपेयर में, ठीक है, अपने सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा समय तक रह सकता है। रीजन ये है, प्लांट सेल्स कंसिस्ट द रिजिड सेल वॉल, प्लांट सेल्स कंसिस्ट द रिजिड सेल वॉल, एंड ड्यू टू रिजिड सेल वॉल the plants able to survive, the plant cells able to survive long time in their surrounding to compare than the animal cells. Animal cells lack of cell wall or devoid of cell wall, that is without cell wall, so there is direct interfere of surrounding medium to the animal cells to compare than the plant cells. Plant cells cannot easily interact with the surrounding medium because of having the cell wall, while animal cells has the lack of cell wall, so the surrounding medium direct interfere with the animal cells. So animal cells cannot easily survive in the surrounding medium, while plant cells can survive longer. ठीक है, ये आई होप क्वेश्चन नंबर इसमें हमने 11 to 17 को टच किया। ये 2 मार्क्स के थे और सबके आंसर आप कॉपी में लिख डालेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये जो दिख रहा है सब या तो वीडियो से भी देख सकते हैं या फिर इसका PDF मिल जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।